Hello everyone. So in this video we will continue our discussion with the topic virus, its structure and morphology. So without any further ado, let's get started. So now moving on, we will discuss about the capsid structure. So simply a virus consists of the single molecule of the nucleic acid, whether it can be DNA or RNA, that is surrounded by a morphologically defined protein coat, the capsid. The capsid and the enclosed nucleic acid constitutes the nucleocapsid. The nucleocapsid of some viruses is surrounded by the lipoprotein envelope. The capsid is composed of the morphological units called the capsomers, which contain one or more polypeptides. These protein subunits are arranged in a typical fashion by the non-covalent bonds that form a suitable structure, that is capsid, to act as a protective coat for the nucleic acid against any physical and the chemical stresses. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द कैप्सिड स्ट्रक्चर. सो सिंपली अ वायरस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड. It can be DNA or RNA that is surrounded by a morphologically defined protein coat, that is capsid. अब देखो, जो भी वायरसेस होते हैं ना, उनके पास सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है. चाहे उनके पास डीएनए हो सकता है, चाहे उनके पास आरएनए हो सकता है. ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल एक साथ पर्टिकुलर वायरस में प्रेजेंट नहीं होते. अब जब इस वायरस में या तो डीएनए है या तो आरएनए है, बेसिकली ये जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है. यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल है और इसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड. ठीक है. आफ्टर दैट द कैप्सिड एंड द enclosed न्यूक्लिक एसिड constitutes the nucleocapsid. अब देखो, कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड. बेसिकली वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसके चारों तरफ क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड. अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड. ठीक है. द न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ सम वायरसेस इज सराउंडेड बाय द लिपोप्रोटीन एनवेलप. अब कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जहां पे जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है उसके चारों तरफ एक लिपोप्रोटीन एनवेलप प्रेजेंट होता है. ठीक है. The capsid is composed of a morphological units that is known as capsomers contain one or more polypeptides. अब ये जो कैप्सिड है इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, कैप्सोमर्स. बहुत सारे कैप्सोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, कैप्सिड, जो कि क्या करता है, किसी भी वायरस के न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करता है और न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड. यहां तक बात क्लियर है. ठीक है. आफ्टर दैट these protein subunits are arranged in a typical fashion by non-covalent bonds that form a suitable structure to act as a protective coat for the nucleic acid against any physical or chemical stresses. So देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि जो कैप्सिड है इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है कैप्सोमियर्स. ठीक है. अब ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये क्या है, प्रोटीन के बने हुए सब यूनिट्स जो कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं एंड अल्टीमेटली दे विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड. ठीक है. साथ ही साथ ये जो कैप्सिड है ये क्या करती है, मैंने पहले भी बताया था, किसी भी वायरस के न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करती है. इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए एंड विल प्रिवेंट द डीएनए और द आरएनए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द स्ट्रेसेस, आइदर इट कैन बी फिजिकल और केमिकल. ठीक है. So now moving on the basis of the arrangement of the capsomeres, there are three types of the virion symmetry. The first one is the icosahedral symmetry. An icosahedron is a regular polyhedron. The virion with the icosahedral symmetry have 12 vertices, 30 edges, 20 faces, each face an equilateral triangle. After that, the icosahedral have an axis of 2, 3 and 5 folds rotational symmetry which passes through their edges, faces and vertices respectively. The icosahedron is an optimum solution to the problem of constructing from repeating subunits a strong structure enclosing a maximum volume. The icosahedron is built to house and protect the viral nucleic acid. So देखो भाई, simply on the basis of the arrangement of the capsomeres, there are three types of the virion symmetry. देखो, मैंने आपको बताया था कि जो वायरस है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज कैप्सिड. और इन कैप्सिड का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे कैप्सोमियर्स जो कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एंड फाइनली दे विल फॉर्म द कैप्सिड. ठीक है.
अब बेसिकली ये जो कैप्सोमियर्स हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से किस तरीके से जुड़ते हैं, किस अरेंजमेंट से जुड़ते हैं, वो डिसाइड करता है अबाउट द विरियन सिमेट्री, ठीक है। एंड द फर्स्ट सिमेट्री इज द आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। एंड आइकोसाहेड्रॉन इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। बेसिकली ये जो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री वाले वायरसेस होते हैं वो एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन ही होते हैं। सिंपली पॉलीहेड्रॉन एक ऐसी 3D शेप होती है जिसके पास 6 से ज्यादा फेसेस होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, द विरियन विद द आइकोसाहेड्रल सिमेट्री हैव 12 vertices, that is corners, 30 edges, 20 faces, each face an equilateral triangle. सो देखो भाई, मैंने आपको बताया कि जो भी वायरसेस आइकोसाहेड्रल सिमेट्री शो करते हैं दे आर एक्चुअली अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, एक ऐसी 3 डायमेंशनल शेप जिसके पास 6 से ज्यादा फेसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो इन द केस ऑफ द वायरसेस हैविंग द आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, उनके पास 12 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, दैट इज 12 कॉर्नर्स, 30 एजेस होते हैं, 20 फेसेस होते हैं और सभी फेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। After that, the icosahedral have an axis of 2, 3 and 5-fold rotational symmetry which pass through their edges, face and vertices respectively. So देखो भाई, सबसे पहले बात आती है कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। तो सिंपली हम किसी भी शेप को रोटेशनल सिमेट्री की कैटेगरी में तब रखते हैं इफ अगर हम उस पर्टिकुलर शेप को किसी पॉइंट से और किसी एंगल से रोटेट करें तो वो अपनी सिमेट्री को कॉपी कर ले, मिरर कर ले आफ्टर द रोटेशन, ठीक है। सो सिंपली आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में आपको 2-fold, 3-fold और 5-fold रोटेशनल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है विच विल पास थ्रू इट्स एज, फेस एंड वर्टिसेस, ठीक है। After that, the icosahedron is the optimum solution to the problem of constructing from repeating subunits a strong structure enclosing a maximum volume. So देखो भाई, simply icosahedral symmetry show करने वाले जितने भी viruses होते हैं, they have the strongest structure which will enclose the maximum volume, ठीक है। After that, the icosahedron is built to house and protect the viral nucleic acid. अब देखो, सिंपल सी बात है, कैप्सिड का मेन पर्पस क्या था, ताकि वो वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एनी फिजिकल और केमिकल स्ट्रेसेस। तो सिंपली जो भी वायरस आइकोसाहेड्रल सिमेट्री शो करते हैं, तो दिस पर्टिकुलर आइकोसाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द कैप्सोमियर का सिंपल काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द वायरल न्यूक्लिक एसिड, वेदर इट कैन बी RNA और इट कैन बी DNA, ठीक है। So now moving on, in the icosahedral symmetry, it could be built from a few large proteins or from a many smaller proteins. The viruses employ the later option because the smaller proteins need fewer bases and therefore less genome. Icosahedron is a highly robust shape that can be built from the asymmetric subunits but arranged to give us symmetrical results. Rather than from the perfect pairs, viruses manufacture the icosahedron because it takes fewer components, capsomeres, to form the more rigid structure than a sphere. So देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे about the icosahedral symmetry, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। Simply it could be built from a few large proteins or from many smaller proteins. सो देखो, सिंपली कैप्सिड क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो वायरस के न्यूक्लिक एसिड को किसी भी फिजिकल और केमिकल स्ट्रेसेस से प्रिवेंट करती है, ठीक है। और ये कैप्सिड किसका बना हुआ होता है, कैप्सोमियर्स का, जो कि क्या है, प्रोटीन सब यूनिट्स। अब ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये लार्ज प्रोटीन यूनिट्स भी हो सकते हैं और स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स भी हो सकते हैं। अब कोई भी वायरस आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को फॉर्म करने के लिए कैप्सोमियर्स के लार्ज सब यूनिट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है और आइदर इट कैन यूज लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ द कैप्सोमियर्स टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, ठीक है। Moving on, the viruses employ the later option because the smaller proteins need fewer bases and therefore less genome. The icosahedron is a highly robust shape that can be built from asymmetric subunits but arranged to give a symmetrical results. So देखो, जस्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी वायरस आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को एक्वायर करने के लिए लार्ज प्रोटीन कैप्सोमियर्स या तो स्मॉल प्रोटीन कैप्सोमियर्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब बेसिकली वायरसेस अक्सर यही देखा गया है कि स्मॉल प्रोटीन कैप्सोमियर्स की मदद से आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को एक्वायर करते हैं, क्योंकि इस केस में उन्हें
सिमेट्री एक्वायर करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में बेस और जीनोम की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ ये जो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, इट इज वन ऑफ द रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ द सिमेट्री। बेसिकली आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में क्या होता है, एसिमेट्रिकल सब यूनिट्स, एसिमेट्रिकल कैप्सोमियर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के आपको सिमेट्रिक रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और हम सभी जानते हैं अगर किसी शेप की सिमेट्रिक डायमेंशन होती है वो एसिमेट्रिक के कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, moving on, rather than from perfect spheres, viruses manufacture the icosahedron because it takes fewer components of the capsomeres to form the more rigid structure than a sphere. So देखो सिंपली अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि वायरसेस एक परफेक्ट स्फीयर की शेप को एक्वायर क्यों नहीं करते, व्हाई दे आर गोइंग फॉर द आइकोसाहेड्रन? बिकॉज आइकोसाहेड्रन की सिमेट्री फॉर्मेशन में बहुत ही कम अमाउंट में कैप्सोमियर्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो रिजल्ट हमें मिलता है इट इज मोर रिजिड, रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ सिमेट्री कंपैरेटिवली टू द परफेक्ट स्फीयर्स। इसलिए वायरसेस आइकोसाहेड्रन को प्रेफर करते हैं रेदर देन गोइंग फॉर द परफेक्ट स्फीयर्स। ठीक है, moving on, these asymmetric protein capsomeres therefore arrange themselves like a jigsaw puzzle to form a symmetrical face in the shape of an equilateral triangle. Because the chemical bonding between the capsomeres is identical, so the possible greatest strength is obtained. So देखो भाई, simply these asymmetric protein capsomeres therefore arrange themselves like a jigsaw puzzle to form a symmetric face like in the shape of an equilateral triangle. देखो जो भी वायरस आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को एक्वायर कर रहे हैं वहां पे एसिमेट्रिक प्रोटीन कैप्सोमियर्स एक दूसरे के साथ जिक्सॉ पजल मैनर में जुड़ते हैं एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिमेट्रिक फेस इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एसिमेट्रिक कैप्सोमियर जुड़ेंगे और आपको सिमेट्रिक रिजल्ट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फाइनली आपके पास फॉर्म होगा। ठीक है, आफ्टर दैट because of the chemical bonding between the capsomeres is identical, so the greatest possible strength is obtained. Basically ये जो asymmetric capsomeres एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं इनके बीच में सेम टाइप की केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से जो फाइनल सिमेट्रिक आइकोसाहेड्रन हमें मिलता है उसमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ होती है एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और रोबस्ट टाइप ऑफ द सिमेट्री दैट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, so these are the icosahedron view from a 2-fold, 3-fold and 5-fold axis of symmetry। और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आइकोसाहेड्रल सिमेट्री के पास क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री, कि अगर इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट और एंगल से हम रोटेट करते हैं सो इट विल कॉपी और मिरर इट्स सिमेट्री आफ्टर द रोटेशन। ठीक है, so that's all for this video. We will meet very soon in the next one.